आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड टॉपिक राजीव सक्सेना जी ने सुबह फर्स्ट लेक्चर में बताया। बट इसमें मैं बस वही लूंगी जो कि हमारे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो रिकमेंडेशन है, ज्यादातर मैं उन्हीं को लूंगी। तो कोविड चैलेंज फॉर एनेस्थेटिस्ट। तो ये कोविड की वजह से हमारे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट या एनेस्थीसिया के डॉक्टरों को जो भी चैलेंज फेस करना पड़ा उनके बारे में बात करेंगे। द बिग क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग दिस डेज इज व्हाट विल बी द न्यू नॉर्मल बी लाइक। क्योंकि हम लोग नॉर्मली पहले जैसे बिहेव कर रहे थे उससे बिल्कुल ही चेंज हो गया अब आज का सीनियर में। Clearly, the COVID-19 has had a dramatic impact on all the anesthesia practices. Only time will tell which of the today's challenge will result in new ways of providing care and managing practices. Now that we face different crashes with the coronavirus, the question is what the new business or the new industries will it inspire? The anesthesia challenge of COVID-19 appears to fall into three broad categories: financial, manpower, and strategic. The surgical case volume started to drop down since the March, most probably 15th of March से down होना शुरू हो गए थे. And it was not until May or June that they returned to normalcy, to some degree of normalcy. This sudden drop in the case volume dramatically impacted every practice's cash flow. तो financial burden जो लोग private में है उनके लिए तो काफी हो गया था. And because of the lag in collection, even when the case volume started to increase, it was months before the cash flow was recovered. This COVID pandemic has a major impact on anesthesia practice. As we all know that globally the healthcare system were compelled to curtail surgical services. मतलब surgical services को लगभग बिल्कुल बंद ही कर दिया गया था for the period of 2 or 3 months at least in India. Suspending the elective procedures while maintaining the minimum essential, urgent, semi-urgent surgical cases and managing the pandemic also. एनेस्थीसिया क्योंकि हमारा कोविड होता है तो ज्यादातर हम लोग पैंडेमिक मैनेज करने में ही अपना सारा मैन पावर यूज करते थे उस समय। एंड ऑल्सो नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द ongoing COVID care as we are the frontline workers and we constitute the main core group. The lesson learned during the ongoing COVID pandemic have made us aware of the fallacies of the COVID testing protocols. क्योंकि sometimes होता है कि पेशेंट आपका नेगेटिव टेस्ट होकर के आ रहा है, बट आफ्टर द प्रोसीजर नेक्स्ट उसका टेस्ट हो रहा है तो वो ही बिकेम पॉजिटिव। तो क्या फैलिटीज कहाँ हो रही है इसमें सब लोग कंफ्यूज थे, बट अभी भी स्टडीज चल रही है क्या रीजन हो सकता है। Accordingly, the protocols incorporating appropriate safety measures have been devised to minimize the chances of transmission of the COVID infection from the patients who are undergoing to the surgery to the healthcare worker and facilitate the safe anesthesia and the surgical procedures during whole of the pre, intra, and post-operative periods. The risk stratification and the disease-related adverse outcomes and the prioritization of the cases was based on these important. The equally important is to be aware of and counsel the patients for the possible less than the ideal outcomes. क्योंकि जो मरीज का पहले हमारा आउटकम होता था वैसा जरूरी नहीं कि इस कोविड इरा में हो पाएगा। हो सकता है कि पेशेंट को अनएंटिसिपेटेड कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। In this presentation, the various issues related to the safe anesthesia practice during COVID pandemic and their outcomes will be discussed. The fundamental challenge is to generate the enough revenue to recruit and retain the sufficient number of the qualified providers to meet the needs of the facility. तो बहुत बार हम लोगों ने क्या किया है कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए डिफरेंट टू टीच द अदर पर्सन एंड टू टीच द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टू टीच द अदर स्पेशलिटी के जो भी लोग हैं उनको टीच करने के लिए कि कैसे कोविड से हम फाइट करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। हम लोग डिफरेंट तरह के टीचिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। Although most believe that the pandemic would represent a relatively short-term disruption, कुछ लोग होते हैं जो कैजुअली लेते हैं, बहुत सारे लोग कि आपके प्राइवेट में या फिर जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों ने इस पैंडेमिक को बस सोचा कि बस थोड़े दिन के लिए आया है, या कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट का बस ये एक ढकोसला है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत से डॉक्टर्स अपने वीडियो भी डालते रहते हैं कि कोविड कुछ है नहीं और इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे ये गवर्नमेंट का किया हुआ कुछ है। The impact of COVID-19 has added an additional layer of challenge, and it all sounds like a perfect storm. As on so many occasions, it appears to be adapting to the changing circumstances. अब हम लोग कहाँ पहले कभी ऑनलाइन चीजों पे कहाँ बहुत ही रेयरली जाते थे ना,
अब देखो लग रहा है हमारा ये लाइफ एक पार्ट हो गया है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन एंड हो सकता है कि इस ऑनलाइन इस एरा में कुछ जो नेसेसिटी है, इट मे बी द मदर ऑफ इन्वेंशन बाय सम ऑफ मोर ऑफ द नेसेसिटीज। तो आते हैं पॉइंट पे, ये जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर जो है ना, उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है और मैंने कहीं देखा भी था किसी ऑनलाइन में वीडियो पे, तो वहां से मैंने मुझे ये आइडिया है कि चलो हम भी बताते हैं। इसमें जो वुहान, तो वुहान के बारे में सब लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से अब तक। तो वुहान में जो ये निमोनिक है, इससे आप इजीली इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि W स्टैंड फॉर वॉशिंग योर हैंड। तो आपको हमेशा अपने हाथ को धोते रहना है, ठीक है। जब भी आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं या कभी भी अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय यू ऑल दैट यू शुड वॉश योर हैंड्स frequently with the soap and water, or keep on sanitizing your hands. And U stands for you take only urgent or emergency surgeries if required, and if there is life threatening emergencies. And H stands for you should keep away your hands from your mouth and nose and face always. And A stands for stay away, means कि keep social distancing. बट मेरा मानना है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग टर्म के बजाय हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग में तो आपका इमोशनल और ये सब हो जाएगा ना, लेकिन फिजिकल में कि यू शुड बी फिजिकली डिस्टेंट योरसेल्फ फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो नॉर्म्स है ये 6 फीट मतलब 2 गज दूरी और मास्क जरूरी वाला जो हमारा डायलॉग, तो आपको 6 फीट अपार्ट रहना है एक दूसरे से, कोशिश ये करनी। और इसमें N स्टैंड्स फॉर नो स्पिटिंग। हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग बाहर थूकते रहते हैं, मसाला खा के या ऐसे ही थूकते रहते हैं, या मतलब ज्यादातर लोग देखा होगा। और दे you should not sneeze anywhere in the atmosphere. You should also always wear mask during this COVID time. अब तो ये हमारा एक लाइफ का पार्ट बन गया है। और कफिंग भी नहीं करनी चाहिए कभी भी बाहर। तो N stand for no spitting, no sneezing, no coughing. And as anesthesia personnel, we should avoid generating aerosol procedure. मतलब we should avoid the procedures which can generate aerosols. तो कौन कौन से हमारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें एरोसॉल जनरेट होता है, बताएगा आपने से? तो लिखा ही हुआ इसमें नहीं लिखा नहीं जाए। हाँ, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि एरोसॉल जनरेट करते हैं एनेस्थीसिया में? CPR अभी जो सीपी, हाँ, बट ये कि अगर CPR तो करेंगे। और आप बताओ, सारे स्टूडेंट हो, किसी ने फर्स्ट ईयर तो क्रॉस कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने। अरे हमारे ये जो टेक्नीशियन काम करते होती में ये गैस्ट्रो वाले, हाँ गैस्ट्रो नहीं एमटीयू मिस नंबर क्या क्या हम लोग क्या करते हैं, वो डब्बा लाते हैं एरोसॉल बॉक्स, क्या करते हैं तो मंगाते हैं कि बॉक्स लाओ, क्या करते हैं तो मंगाते हैं कि ड्रेप लाओ। फेस शील्ड क्यों पहनते हैं, क्या करते समय पहनते हैं? इंट्यूबेशन, एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन में क्या आएगा आपका वेंटिलेशन भी आ जाएगा और आपका एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट भी आ जाएगा, और एट द टाइम ऑफ एक्सट्यूबेशन भी, ठीक है। एक्सट्यूबेट करते हैं तभी कहते हैं ना कि फेस शील्ड पहन लो, कवर कर लो, वहां पास मत जाओ, जो कर रहा है बस वही जाएगा, ये सब करते रहते हैं हम लोग। तो एक हो गया हमारा इंट्यूबेशन, दूसरा हो गया हमारा एक्सट्यूबेशन, और तीसरा हो गया कि इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जब हम लोग आईपीपी भी देते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर को भी वेंटिलेशन देंगे तो एरोसॉल जनरेशन का रिस्क रहता है। और क्या हो गया, बाल का नाम सुना है, ब्रोंकोएल्वुलर लवाज। आईसीयू में जो लोग कभी गए होंगे या देखा होगा तो दिखता होगा, ब्रोंकोएल्वुलर लवाज, ब्रोंकोस्कोपी। हाँ, ब्रोंकोस्कोपी भी अगर, हाँ, तो जगह लवाज करते हैं आईसीयू पेशेंट में तो जरूरत पड़ती है, कोविड पेशेंट में कई बार जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी आपका एरोसॉल जनरेशन काफी अच्छा खासा होता है। और क्या होता है, और क्या करते हैं इंपॉर्टेंट, जब मरीज का डिफिकल्ट एयरवे होता है या पेशेंट को एस्मा होता है तो क्या कराते हैं, प्रिपेयर करो पहले, हैं नेबुलाइजेशन। तो नेबुलाइजेशन भी एरोसॉल जनरेटिंग एक प्रोसीजर है। और क्या होता है, आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट टू अवॉइड एरोसॉल जनरेशन, हमें हमेशा नहीं, एरोसॉल जनरेशन को अवॉइड करने के लिए हमें तो ये प्रोसीजर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत जरूरी तभी करना है, और जब करना है तो क्या करना है, हमेशा मास्क पहनना है। ये आपको पता है कि ये रिस्क है कि एरोसॉल जनरेशन हो सकता है, ड्रॉपलेट स्प्रेड हो सकता है, तो आपको उस एनवायरनमेंट में हमेशा मास्क पहनना है। और प्रिफरेबली कौन सा मास्क पहनना है, N95 या N99। तो ये 95 99 N95 और N99 का क्या मतलब होता है?
कोई बता सकते हैं आप लोग? कौन सा बेहतर 99 की 95? ऑब्वियसली जो जो ज्यादा नंबर है वो बेहतर होगा। किसी को पता है 95 और 99 में क्या फर्क? चलो ठीक है। तो जो इट इज, और ये कैसे डिफरेंट है हमारे नॉर्मल सर्जिकल मास्क लगाते हैं, ट्रेलियर सर्जिकल मास्क, उससे कैसे डिफरेंट है? तो जो N95 मास्क है ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है मोर देन 95% ऑफ द एरोसॉल which are more than 0.3 micron in size. It provides probably the best protection against COVID-19. तो जो 95% ऑफ द एरोसॉल आपके एटमॉस्फेयर में है उसको ये इजीली ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो कि साइज है 0.3 माइक्रोन। तो 0.3 माइक्रोन साइज से छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका क्या होगा? तो 0.3 माइक्रोन से बड़े ड्रॉपलेट्स को तो इजीली प्रिवेंट कर देगा, उससे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन आज जो हमारा जो ये एयरबॉर्न डिजीज है, जो कि हमारा ड्रॉपलेट जो एनवायरमेंट में आपके स्प्रेड हो रहा है, उसका साइज मोस्ट ज्यादातर जो ये होता है ये सलाइवा से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो ट्रेकियो म्यूकोजल सिक्रेशंस होता है उससे निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज 1 माइक्रोन साइज के होते हैं। तो 0.3 माइक्रोन से नीचे का होना बहुत ही रेयर है। तो मोस्ट ऑफ द, इससे क्या कि आपका प्रोटेक्शन 95% तो हो ही जा रहा है, इसलिए इसको N95 बोलते हैं। और जो N99 मास्क है वो 99% प्रोटेक्ट करता है आपको, कि 99% ऑफ द एरोसॉल को वो प्रिवेंट करता है आपके मास्क के थ्रू एंट्री करने में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि 0.3 माइक्रोन से कम साइज के हैं। कोरोना वायरस का क्या साइज है? ऐसा देखा गया जो माइक्रोस्कोपिक व्यू में कि 0.3 से 0.1 तक का ये रेंज है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये वैज्यूम करके चलते हैं कि इसका साइज 0.1 माइक्रोन ही होगा, और वो चलता कैसे, वो स्प्रेड हो रहा है एरोसॉल्स के थ्रू। तो एरोसॉल और कोरोना वायरस जो उसके अंदर है उसका साइज 0.3 से ज्यादा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए आपको N95 से प्रोटेक्शन आराम से मिलता है, ठीक है। तो जो ये है, इट टिपिकली ब्लॉक्स नियरली एवरी एरोसॉल्स एंड द ड्रॉपलेट्स दैट आर आउट देयर इन द एनवायरनमेंट एंड इट प्रोवाइड्स वेरी गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। बट द डाउनफॉल क्या है इन दोनों मास्क का, कि ये दोनों मास्क इजीली अवेलेबल नहीं है हर जगह। हमारे पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट में हम लोगों को भी बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे हेड और डिपार्टमेंट ने उसके लिए कोशिश करा, और तो शायद वो मिल पाए, नहीं तो इनिशियल फेजेस में कहाँ मिलता था, नहीं मिलता था ना, हम लोग कपड़े वाला मास्क बांधते थे। तो और ये एक्सपेंसिव भी होता है अगर आप बाहर से खरीदना चाहो तो ये कॉमन पीपल के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप N95 मास्क पहन रहे हैं तो जब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि आपको कभी भी बाहर का आउटर सरफेस नहीं छूना है। जैसे मास्क आपने ये पहन लिया तो अब ये बार बार इसको बाहर ना छू, जैसे आपको कोविड पॉजिटिव एरिया में आप काम कर रहे हो, आपको मास्क प्रॉपरली लगाना है और बाहर का नहीं छूना है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन भी ले लिया होगा, एक एक डोज, है ना, तो और यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है, सबका टेम्परेचर चेक होकर गया होगा, जो सिम्टोमेटिक होंगे वो शायद आई नहीं होंगे या वर्चुअली कनेक्टेड होंगे मेरे ख्याल से। तो कितने लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं या मेरे ख्याल से हैं? सबको सबको ये प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो थम्स अप कर दीजिए चैट पर। तो हाँ, तो ये नेक्स्ट क्या था हमारा, हाँ, कि आपको ये करना है कि बाहर का जो सरफेस है मास्क का वो नहीं छूना है। क्यों क्यों नहीं छूना है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एरोसॉल्स या जो एरोसॉल पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स हैं वो उसी आउटर सरफेस पे ही सेटल्ड रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू शुड टच द मास्क टुवर्ड्स द एंड्स, जहाँ कान के पास होता है वहां से, यहाँ से पकड़ के ऐसे लगाइए और ये इसकी डोरी को पकड़ के ऐसे प्रॉपरली फिक्स कर लीजिए, और ये एंश्योर कर लीजिए कि जो मास्क है आपका प्रॉपरली एयर फील्ड हो। तो एयर फील्ड चेक करने के लिए क्या करते हैं, जब आप मास्क लगाते हैं तो इनहेल करते हैं तो क्या होता है, कई बार मास्क जो है तो सक इन हो जाता है, और अगर आप एक्सहेल करेंगे ना तो आपको सफोकेशन फील होगा। तो ये भी कहा गया है कि अगर आपको मास्क लगाने के बाद सफोकेशन फील हो रहा है, इट मीन्स कि द फिट ऑफ द मास्क इज परफेक्टली ओके, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिपल लेयर मास्क जो हमारा सर्जिकल मास्क है ये क्या करता है, ये भी प्रोटेक्शन देता है कि नहीं देता है? तो इसके बारे में ये बताया गया है कि
हाँ, ये प्रोटेक्शन देता है, बट इसका प्रोटेक्शन इज अप टू द 80% टू 90% ऑफ द एयरोसॉल्स। ठीक है, और अगर आप ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क को भी प्रॉपर्ली अगर आपने पहन रखा है तो ये 80 से 90% एयरोसॉल से प्रोटेक्शन देता है। और किसी भी मास्क का प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने उसको एयर सील में पहना है तभी उसका प्रोटेक्शन है, नहीं तो उसका प्रोटेक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। नहीं तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोग टी-शर्ट वाला मास्क लगाए रहते हैं, कुछ तो कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, बट जितना मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है दूसरा कि हमारा एरोसॉल जनरेशन या फिर जो जो हमारे कोविड एरा में एनेस्थीसिया पर्सनल है, अगर उनको रिस्क है ऐसा कि हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीपी किट के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए होगी। और रिकमेंडेशन ये भी कि एनेस्थेटिस्ट को हमेशा पीपी किट पहन के रहना चाहिए उस सिनेरियो में जहाँ पे वो स्टेटस के बारे में अवेयर नहीं है। अगर आपको किसी पेशेंट को टैकल करने के लिए भेजा जा रहा है, आपको पता नहीं कि उसका कोविड का स्टेटस क्या है, तो आपको हमेशा उस पर्सन को या उस पेशेंट को पॉजिटिव मान के चलना है। तो यू शुड ऑलवेज वियर पीपीई। पीपी क्या होता है, कोई बताएगा फुल फॉर्म? हाँ, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट क्यों कहते हैं इसको, क्या ये कोई कपड़ा है या कोई रजाई है, गद्दा है, क्या है, सामान है, क्या है? इक्विपमेंट मतलब कि बहुत सारी चीजों से मिला के बना होगा ना। कितने लोगों ने पहना है पीपी किट? आप में से किसी ने पहन रखा अभी तक? इक्विपमेंट में क्या होता है कि सब शुरू से देखो, कैप होगा, गॉगल्स होंगे, फेस शील्ड होगा, ग्लव्स तो है ही है, ठीक है, ग्लव्स है, लेकिन 2 लेयर ऑफ ग्लव्स भी कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग 3 लेयर्स ऑफ ग्लव्स भी पहनते हैं। और शू कवर होता है, शूज भी होते हैं, शूज के ऊपर शू कवर पहनते हैं कुछ लोग। और ये बेसिक इसका क्या फीचर है कि पीपी किट का जो क्या टेक्सटाइल है वो क्या होता है, किस स्टफ किस चीज का होता है? ये नॉन वोवेल सीट का बना होता है जी, ये नॉन वोवेल सीट का बना होता है, मतलब जैसे खाना बना होता है उसमें छीट होती है, छीट इससे क्या फायदा मिलता है कि अगर मान लो ड्रॉपलेट आ भी गया उसके ऊपर तो वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, नॉन वाटर वो उससे रिटेन नहीं कर पाएगा। और वाटर क्या, नॉन वाटर भी होती है, वाटर प्रूफ, हाँ वाटर प्रूफ होता है। तभी तो उसमें गर्मी पसीने से लोग भीगे रहते हैं ज्यादातर जो पहनते हैं, अगर 6 to 8 आवर्स उनको रहना पड़ गया तो। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, वेयरिंग ऑफ पीपी को क्या कहते हैं, डॉनिंग। रिमूवल और डिस्कार्डिंग ऑफ द पीपी को क्या बोलते हैं, डॉफिंग। तो ये डॉनिंग और डॉफिंग के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, और नहीं तो ये बड़ा लंबा एक अलग लेक्चर हो जाएगा, तो हमारा टाइम इतना है नहीं कि मैं उसका प्रॉपर तरीका नहीं बताना चाहूंगी। हमारा जो टॉपिक है मैं उसी से रिलेट बताना चाहूंगी। तो जो हमारे एरोसोल जनरेशन प्रोसीजर्स हैं आपको बताया था मैंने, इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन, ब्रोंकोएल्वुलर लवास, सक्शनिंग एंड अटैचिंग एनी काइंड ऑफ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन लाइक सीपैप और बाइपैप टू द पेशेंट। तो आपको इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एरोसोल बॉक्स लेने होंगे। एरोसोल बॉक्स किस चीज के बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक बॉक्सेस होते हैं। कुछ लोग कांच की बिन देते हैं, बट कांच का तो फ्रेजाइल हो सकता है, उसको बार बार आपको सैनिटाइज और क्लीन करने में, बार बार हैंडलिंग करने में टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको एक्रेलिक नॉन एक्रेलिक और ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लेना चाहिए। और उसके बॉक्स के अंदर ही आपको एयरवे मैनिपुलेशन का जो भी टेक्निक है, चाहे इंट्यूबेशन है, चाहे एक्सट्यूबेशन है, चाहे वेंटिलेशन है, चाहे बाल है, वो करना चाहिए आपको, जिससे कि आपको एरोसॉल स्प्रेड को प्रिवेंट कर पाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर आपको जैसे एज पर हमारे ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी के रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से बहुत से लोग हमारे पीएससी क्लिनिक में पोस्टेड होते हैं, बहुत से लोग हमारे पेन क्लिनिक में पोस्टेड होते हैं, तो वहां पर आपको कैसे हैंडल करना है। जो भी मरीज आ रहा है आपकी क्लिनिक में, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोविड का टेस्ट करा के आए, या जो इमरजेंसी में है तो उसको स्टेटस आपका पता नहीं है, तो मैंने पहले बताया कि every patient who is coming to your clinic or who is coming to you for any medical help, he should be treated as a positive for the COVID। ठीक है, तो आपको हमेशा पीपी किट पहनना है ऐसे लोगों के सामने, या नहीं पीपी किट है तो आपको N95 जरूर लगाना है। और आपके ओपीडी एरिया में या आपके किसी भी प्री ऑपरेटिव एरिया में सभी को मास्क पहनना जरूरी है, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे पेशेंट अटेंडेंट। और उसके बाद क्या है, वो बार बार हाथ धोना है सोप एंड वाटर से। और अगर
नहीं है तो सैनिटाइजेशन तो करना ही है। एवरी 30 मिनट्स में ये रिकमेंडेड है कि हर 30 मिनट में आपको हाथ धोना है ऐसे प्लेस। अच्छा, और क्या करना है आपको? ज्यादातर जो इलेक्टिव चीजें हैं, इलेक्टिव इंटरवेंशन प्रोसीजर हैं जो पेन से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो इलेक्टिव सर्जरीज वाले होते हैं जैसे पीएससी वगैरह हैं, हम लोग पीएससी यूजुअली हम लोगों ने बंद कर दिया था इन दिस टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ कोविड-19। और तो अगर ऐसे इलेक्टिव केसेस हैं या जिनको आप वर्चुअली कनेक्ट होकर के कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको वर्चुअली कनेक्ट होकर वीडियो कॉलिंग पे या ऐसे मीटिंग पे या जूम पे आप आकर के उनको कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को जरूरी हो जाए कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी एंड ही इज रिक्वायर्ड, देन क्या करना होगा कि ऐसे पेशेंट्स को टेलीफोनिकली आप कनेक्ट करिए और उनको ओपीडी विजिट का टाइम अलॉट करिए। ये नहीं कि मान लीजिए आज के दिन में 10 मरीजों को आना है तो 10 मरीजों को एक ही टाइम पे ना बुलाइए, जस्ट टू अवॉइड द क्राउडिंग, है ना। आप हर मरीज को बुलाने के बीच में 20 से 30 मिनट का अंतराल रखिए। एक मरीज चला जाए उसके बाद 20 मिनट के बाद अगला नहीं, वो 20 से 30 मिनट का समय आप उस क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन ऑफ द चैम्बर के लिए हमेशा इस्तेमाल करिए और उसके बाद ही अगले मरीज को बुलाइए। अच्छा, और क्या है, अगर आपने पहले कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेम्परेचर चेक करना है। अगर टेम्परेचर उसका रेज है, कितना होना चाहिए तो ठीक है, कितना होना चाहिए तो रेज है, कोई बता सकते हैं आप? 37.3 कहीं लिखा है, कोई 37 तक ठीक है, उसके ऊपर है तो है ना, 38 तो ज्यादा हो जाएगा। 37 से ऊपर अगर है, जो रिकमेंडेड है आईएसएस है वो बता रही हूँ, मैंने बताया ना जो गाइडलाइन जो रिकमेंडेड है वही बताऊंगी। कोविड टाइम में आपको चैलेंजेस कैसे फेस करना है, ठीक है। तो 37.3 लिखा हुआ है जो गाइडलाइंस है उसमें, और यहाँ भी जो मैंने देखा ज्यादातर अपने यहाँ 37 से ऊपर अगर जाता है तो कहते हैं कि आपका माइल्डली रेज्ड है या रेज्ड है, तो आपको उसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपका टेम्परेचर रेज्ड है, उसके साथ आपको खांसी और छींक भी आ रही है तो आपका स्क्रीनिंग जरूरी है। और अदरवाइज किसी को सिर्फ फीवर रहता है तो भी स्क्रीनिंग जरूरी है। जो लोग हमारे इस कोविड स्पेशल टीम में काम कर रहे हैं उनके लिए तो 100% है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो हम अपने एनेस्थेटिस्ट पर भी मैं बता रहे हैं कि ये सब चीजें हम हमारे जैसे एनेस्थीसिया के पर्सनल के लिए जरूरी है। अगर टेम्परेचर उनका रेज जा रहा है तो उनको स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। और क्या करना है, अगर कोई बाहर से आ रहा है पेशेंट, अगर आ रहा है आपकी क्लिनिक में देखने के लिए, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दीजिए कि वो चाइना से तो नहीं आ रहा है, केरल से तो नहीं आ रहा है, बॉम्बे से तो नहीं आ रहा है, या किसी ऐसे जगह से तो नहीं आ रहा है कि जैसे आरसीएच राजधानी कोविड हॉस्पिटल से तो नहीं आ रहा है ना। तो आप उसको ट्रैवल हिस्ट्री और फ्रॉम द हॉटस्पॉट जरूर लीजिएगा। और ये भी कोई लोग चालाकी करते हैं, जैसे वो सुना है बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट पे स्किप होने के लिए एंटीबायोटिक ले ली और बुखार तो था नहीं तो निकल ली, है ना। तो हमारे यहाँ सबसे पहली मरीज वही आई थी सेलिब्रिटी, ऐसा बता रहे थे लोग, उसका हिस्ट्री आई डोंट नो द रियलिटी, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एनी एंटीबायोटिक है, पैरासिटामोल लेके आया है, कॉम्बिफ्लाम लेके आया है, तो भी वो ससेप्टेबल है, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमने मरीज को ओपीडी में देखा है, पीएससी क्लिनिक में देखते हैं, हम लोग पीएफटी में देखते हैं कई बार, उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हाइट वेट मेजर करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, डिफरेंट मॉनिटर्स यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर तो यूज करते ही करते हैं, और स्पेक्ट्रोमेनोमीटर में की बीपी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट करते हैं, इसको क्या करेंगे, हर मरीज में यूज करने के बाद इसको कंप्लीटली क्लीन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, जो भी आपके पास पॉसिबल मीन्स है। जो रिकमेंडेशन है वो है कि 2 to 3% ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करते हैं सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आप एज एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजिस्ट दिन भर आपने काम किया, उसके बाद आपका सारा काम खत्म हो गया, दिन भर के बाद आप क्या करते हैं, जब आपका ओपीडी या जो आपका ओटी प्रेमाइसिस है, तो ओटी है आपकी, उसके सारे फर्नीचर को, सारे एनेस्थीसिया मशीन को, सारे इक्विपमेंट्स को और फ्लोरिंग्स को, डोर्स को, विंडोज को, इन सभी को डिसइंफेक्ट करना है, क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, जो भी आपका रूटीन मेजर्स है उससे भी। और नया रिकमेंडेशन है कि आप 2 to 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड से करिए, ठीक है। वैसे तो आरसीएच में जो होता है, जो रिकमेंडेशन है यहाँ का हमारे इंस्टीट्यूट का, कि आरसीएच में जहाँ पेशेंट ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो उसमें हर 30 मिनट पे सारे सर्फेसेस, सारे इक्विपमेंट्स के, इवन की रेलिंग ऑफ द, ये जो भी रेलिंग्स होती है वार्ड में,
या मेरा फोन बज रहा है, एक्सक्यूज मी, इसको काम करो। 10 मिनट बाद कॉल करो। तो एवरी 30 मिनट्स पे रिकमेंडेड है कि आपको सारे जो आपके वार्ड के या ओपीडी के या ओटी के जो सरफेस है, विंडो है, डोर्स हैं, रेलिंग्स हैं, उनको वाइप करना है या क्लीन करना है इससे सोडियम हाइपोक्लोराइड से 2% या 3%। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम द हॉस्पिटल यू हैव टू फर्स्ट नॉट ग्रीट एनीवन, नॉट मीट एनीवन एट योर होम। तो आपको क्या करना, सबसे पहले यू शुड गो टू टेक हेड बाथ and put your clothes outside and get it washed. Just after that you can meet anyone in your family. ठीक है। और क्या है, इलेक्टिव सर्जरी जो है हमेशा डिफर करना है, कोई भी इलेक्टिव प्रोसीजर नहीं करना है अगर आपका ये कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो। और इमरजेंसी सर्जरी हमेशा हमेशा लेनी है, कई बार ये आ चुका है, बाबा रिपीट हो रहा है। और इमरजेंसी सर्जरी कराते समय आपको हमेशा पीपी किट पहनना है, इसका ध्यान रखना है। और हमारे कोविड पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड ओटी भी है जो आरसीएच में हमारे यहाँ चलती थी। और इस वाले हमारे इस हॉस्पिटल में तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट की सर्जरी नहीं चलती थी, पॉजिटिव पेशेंट के लिए अलग से डेडिकेटेड ओटी ऑलरेडी है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे केजीएमसी में भी और जैसे सीजेरियन केसेस लगाने के लिए उनके मेन हॉस्पिटल में ही अलग से एक डेडिकेटेड ओटी थी, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो द ट्रुथ। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपका कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको आपको वार्ड से ओटी पे लाना है या ओटी से फिर वापस वार्ड पे भेजना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि उसके लिए सेपरेट एंट्री और एग्जिट गेट होना चाहिए। और ये जो पैसेज है मरीज के आने जाने का वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड होना चाहिए, उसमें कोई भी दूसरा मरीज या कोई भी दूसरा स्टाफ ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जिसकी पोस्टिंग है वही पीपी किट पहन के लेके आएगा और लेके जाएगा। ठीक है। और जो मरीज के रिश्तेदार होंगे, अटेंडेंट होंगे, वो भी पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन किट में होंगे। अगर किट अवेलेबल नहीं है तो N95 मास्क में तो होंगे। और क्या करना, हमारे ओटी में सबसे पहले आपको सारे एयर कंडीशंस को बंद कर देना चाहिए। और जितने भी आपके पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम है उनको बंद कर देना चाहिए। और एसी ऑफ करने का एक रीजन ये है कि ज्यादातर जो वायरस है ये लो टेम्परेचर जैसे 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही ये फ्लरिश करता है। और जो पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम जो है ये, इसको बंद करने से क्या होता है कि वी कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ द एरोसॉल्स और द माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो कि मरीज की वजह से ओटी के एनवायरमेंट में रहती है, मौजूद रहती है। ठीक है। और कुछ कंट्रीज में तो नेगेटिव प्रेशर ओटीज भी हैं, ऐसा किसी लिटरेचर में मैंने पढ़ा है, लेकिन हमारे इंडिया में नेगेटिव प्रेशर ओटीज नहीं है। तो नेगेटिव प्रेशर ओटी का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली ये सक्शन करके रिमूव कर देती है सारे ड्रॉपलेट्स को, और जितने भी क्या कहते हैं एरोसॉल्स होते हैं which have been produced by the COVID positive patient inside the OT environment, उनको ये सक्शन करके रिमूव कर देती है। अच्छा, फिर आगे मैं पीपी किट पहनना सभी स्टाफ के लिए जरूरी है जो उस ओटी एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डॉक्टर। ठीक है। और हमारे एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के लिए क्या है कि आप ड्रग ट्रॉली यूज ना करिए। हमारे यहाँ ड्रग ट्रॉली भी रहती है ओटी में एक मौजूद, तो आपको क्या करना है, ड्रग ट्रे यूज करना है। इसको क्यों यूज करना है, क्योंकि आप इसको बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं। हर मरीज में एक बार यूज करने के बाद अगले मरीज में यूज करने के पहले उसको क्लीन करके सैनिटाइज करना जरूरी है। और जहां तक कोशिश हो सके आप सारे डिस्पोजेबल इक्विपमेंट ही यूज करिए, वन टाइम यूज इक्विपमेंट ही यूज करिए, और वन टाइम यूज ड्रग ही यूज करिए। अब ये नहीं कि मिलाजुलाम 4 या 5 ml की वायर है तो 2 ml निकाल के यूज कर लिया, बाकी का किसी और में यूज करेंगे, आप डिस्कार्ड कर दो। ठीक है। अच्छा, और एक चीज होती है हमारे यहाँ एनेस्थेसिस के लिए कि एचएमई फिल्टर हमारे ओटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। HME filter क्या होता है? It is a heat and moisture exchange filter which catches some of the aerosol particles into it, and because it absorbs moisture and the heat, there should be 2 HME filters present in the patient setting. एक तो होना चाहिए एक्सपिरेटरी एंड पर और दूसरा होना चाहिए एंडोट्रैकियल ट्यूब और सर्किट के बीच में। ठीक है।
जिससे कि मरीज के एयरवे से जो आ रहे हैं वो भी ट्रैप हो जाए, वो फिल्टर हो जाए, और जो एक्सेल्ड एयर में निकल रहे हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाए। तो और ये एचएमई फिल्टर जैसे हम लोग तो रूटीनली चेंज करते हैं, हर मरीज में नया लगाते हैं। तो कोविड में तो लगाना ही लगाना है, लेकिन 2 लगाना है कोविड, ठीक है। और जितने भी हम सर्किट्स या फिल्टर्स और जो भी कैथेटर माउंट यूज करते हैं वो सारे डिस्पोजेबल होने चाहिए, और हर पेशेंट के लिए सिंगल यूज होना चाहिए, और इट शुड ऑलवेज बी डिस्कार्डेड आफ्टर यूजिंग इन दैट पर्टिकुलर सिंगल पेशेंट, एंड द न्यू वन शुड बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट न्यू पेशेंट, ठीक है। और मॉनिटर्स को हमें हमेशा कवर करना चाहिए पॉलीड्रेप से, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं अपने ओटी में, सारे मॉनिटर्स को पॉलीड्रेप से कवर कर देते हैं, सो दैट you are not directly touching the monitor and machine with your soil gloves. Preferably the anesthesia in the COVID patient, the preferred anesthesia is क्या? Regional anesthesia. जीए अवॉइड करना चाहिए। तो जीए अवॉइड करने का रीजन वही है कि एरोसोल जनरेशन टेक्निक जितने हम उसको नहीं करेंगे तो सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे, ओटी भी सेफ रहेगा, और मरीज भी सेफ रहेगा। तो क्या होता है कि अगर मान लो पेशेंट को जीए दे करते हैं तो उसको हमें पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग की क्या जरूरत पड़ती है। रीजनल में क्या होती है, अर्ली अवेकनिंग भी हो जाती है, रीजनल में जल्दी विनिंग ऑफ द ड्रग भी हो जाता है। जीए में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, देयर मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ शिफ्टिंग द पेशेंट इनटू आईसीयू, है ना, या सर्जिकल आईसीयू। तो हमें ये सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है, मतलब पेशेंट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरोसोल जनरेशन का रिस्क हमेशा रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप कफिंग और स्नीजिंग के समय एरोसोल, नॉर्मल ब्रीदिंग में भी आपकी ह्यूमिडिफाइड एयर जो एक्सहेल कर रहे हैं उसमें भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी रिकमेंडेशन है कि जो पेशेंट मास्क पहन के अक्सर आता है ओटी के लिए ना, हम लोग बुलाते हैं मरीज को तो मरीज मास्क पहन के आता है, तो ये रिकमेंडेशन है आईएसए की तरफ से कि उसका मास्क मत हटाइए, उसके ऊपर से वेंटिलेट करिए। उसके ऊपर से आप वेंटिलेट करोगे तब भी उसको ऑक्सीजन 100% मिल रही है, ऐसा रिकमेंडेशन है। बट हम लोग अपने ओटी में कर नहीं रहेंगे, हम जब मास्क वो लगाते हैं फेस मास्क तो उसका मास्क हटा देते हैं, मरीज का सर्जिकल मास्क हटा देते हैं। बट यहाँ पे ये इन्होंने रिकमेंड करा आईएसए ने कि जो 3 लेयर सर्जिकल मास्क है उसके ऊपर से आप मास्क लगा के वेंटिलेट करो, और आपको हमेशा क्या लो फ्लो ऑक्सीजन रखनी चाहिए वो प्री ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन के लिए। हाँ, आप फ्लो कम कर सकते हैं बट टाइम बढ़ा सकते हैं। पहले हम लोग 3 मिनट तक प्री ऑक्सीजनेट करते थे, इसको 3 मिनट से आप 5 मिनट से ज्यादा या 5 मिनट मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो जीए देना ही देना है तो क्या करेंगे, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे विद रिक्वायर्ड प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेंट और चॉइस क्या होगा हमारा, सक्सिलाइन कोलिन, स्कोलिन होगा। स्कोलिन कब नहीं होगा, जब कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। जब कॉन्ट्राइंडिकेशन टू स्कोलिन है उस मरीज में तो क्या करेंगे, रोकिरोनियम लेंगे, ठीक है। तो रोकिरोनियम देने के बाद हम क्या करेंगे कि रोकिरोनियम या सक्सिलाइन कोलिन देने के बाद क्या क्या करेंगे, हम पेशेंट को वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं, पहले से प्री ऑक्सीजनेट करके उसका ऑक्सीजन रिजर्व काफी अच्छा खासा बना लिया हमने, तो हमने मसल रिलैक्सेंट दे दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम वेंटिलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं, पता है कि एरोसोल जनरेशन को अवॉइड करने के लिए वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेट करने के लिए इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ेगा, तो हमें पॉजिटिव प्रेशर अवॉइड करना है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट आ जाए, तो यूजुअली इफेक्ट आ जाता है 30 से 90 सेकंड में आ जाता है। तो हम लोग को उसी समय तुरंत पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, और इंट्यूबेशन करने के बाद आपको आईपीवी मतलब इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं देना है, बल्कि आपको क्या करना है, ट्यूब को इन्फ्लेट करना है, कफ इन्फ्लेट कर दीजिए, और जब कफ इन्फ्लेट हो जाएगा उसके बाद आप वेंटिलेट करिए, सो दैट कि जो nothing should come out of the respiratory tract of the patient, ठीक है। जब कफ इन्फ्लेट है तो रेस्पिरेटर से कुछ आ ही नहीं रहा है, उसके बाद ही आप वेंटिलेट करो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात आ गई कि कितने एनेस्थीसिया पर्सन होने चाहिए कोविड ओटी में। आप नंबर ऑफ स्टाफिंग कम करोगे तभी तो आपके पास मैन पावर ज्यादा रहेगा। मान लीजिए कल वो बीमार पड़ गया, या कल का एक बंदे का एक्सपोजर है, ड्यूटी टाइम भी एक होती है कि 8-8 घंटे सब ड्यूटी करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सनल मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं मतलब स्टैंडर्ड है कि 2 होने चाहिए एनेस्थीसिया पर्सनल ओटी के अंदर। हो सकता है एक डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो सकता है कि कोई एक रेजिडेंट हो, एक कोई सीनियर हो, लेकिन हाँ डिफिकल्ट सिनेरियो में जब आपको लगता है कि पेशेंट इज रिक्वायरिंग वेरी मच ऑफ हेल्प, ही इज वेरी सिक एंड डिफिकल्टी किसी भी चीज में, चाहे सर्जिकल डिफिकल्टी हो चाहे एयरवे डिफिकल्टी हो, तो उस सिनेरियो में आप 3 तक एनेस्थीसिया पर्सनल एक ओटी में रख सकते हैं।
और क्या है, नेबुलाइजेशन अवॉइड करना ही करना है, फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन भी अवॉइड करना है, जैसे बाल बताए तो भाई ब्रोंकोएल्वुलर लवाज फाइबर ऑप्टिक से ही आता है, हम लोग अपने यहाँ करते हैं, तो वो भी अवॉइड करना है। और आपको सक्शन भी अवॉइड करना है, हमेशा यूज करना है क्लोज सक्शन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब कई बार होता है कि सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस हम यूज करते हैं, जैसे एलएमए यूज कर लिया, या फिर ये गुडस एयरवे हो गया, नेसोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल, ये सब हम एयरवे यूज करते हैं, तो ये भी आपको अवॉइड करना, यूज करना अगर बहुत जरूरी है तभी करिए। जैसे कि पेशेंट का डिफिकल्ट एयरवे, कैन नॉट वेंटिलेट, कैन नॉट इंट्यूबेट सिचुएशन आ रही है, तो आपको बहुत जरूरी लग रहा है तभी इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिए। अच्छा, क्या क्या रिकमेंडेड है कि वीडियो लैरिंगोस्कोप रिकमेंडेड है और ग्लैडोस्कोप रिकमेंडेड है, वीडियो ग्लैडोस्कोप रादर। इससे क्या होता है कि आप मरीज के हेड एंड से दूर खड़े रहते हैं, आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इससे क्या फायदा मिलता है कि यू आर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द एरोसॉल व्हिच इज जनरेटेड बाय द पेशेंट्स माउथ, है ना। और जो आसपास की चीजें हैं पेशेंट के सराउंडिंग्स में भी, जो ड्रेप्स हैं, जो सर्जिकल ड्रेप्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो मॉनिटर्स हैं, वो भी सॉइल होने से बच जाते हैं, क्योंकि आप का इंटरवेंशन जो है वो कम मैनिपुलेटेड होता है, उसमें मैनिपुलेशन की बहुत कम जरूरत पड़ती है। एयरवे में जितना मैनिपुलेशन करोगे उतना ज्यादा एयरसॉल जनरेशन का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड ऑलवेज यूज वीडियो एरेंगोस्कोप और वीडियो ग्लैडोस्कोप, ठीक है। और जैसे हम लोग कन्वेंशनल में और डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी में तो मरीज के बिल्कुल मुंह के साथ एकदम अंदर झांक के देखते हैं, तो बहुत ही उसमें प्रॉक्सिमिटी बहुत ही क्लोज हो जाती है, तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, एक चीज, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि बहुत बहुत टाइम में लोग बोलते हैं कि ये तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, इसको आराम से एक्सट्यूबेट करेंगे आईसीयू में। ऐसा नहीं है, आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको ओटी में ही एक्सट्यूबेशन ट्रायल देना चाहिए। अगर पेशेंट का वेंटिलेटरी पैरामीटर्स या उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको एक्सट्यूबेट नहीं कर सकते हैं, तो ही आप उसको कोविड आईसीयू में शिफ्ट करो, अदरवाइज यू ट्राई टू एक्सट्यूबेट द पेशेंट इटसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर ओटी, ठीक है। अच्छा, मान लो पेशेंट का सर्जरी हो गया, एक्सट्यूबेट भी हो गया, तो क्या करना है आपको, पेशेंट को आपको ट्रांसफर बैक करना है वार्ड में, उसको कहीं आईसीयू में या पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में या हाई डिपेंडेंसी एरिया में आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका स्पेस भी बचेगा और जो स्प्रेड, रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, we have to move the patient directly to the ward from the OT in the same manner as we have carried this patient from the ward to the OT in that particular isolated passage, जिससे कि वो कोई मरीज आ रहा है जा रहा है, जिसमें कि कोई और मरीज ना आता है जाता है, वो डायरेक्टली उस वार्ड से उस ओटी तक का कनेक्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब सर्जरी हो गई, पेशेंट शिफ्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है सारे इक्विपमेंट्स का, मशीन का, सारे जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज करे हैं, और डिकॉन्टामिनेशन करना है, जिसका जिस तरह से हम लोग रूटीन में करते हैं। अच्छा, और ये मैंने पहले भी कहा बताया है कि आपको ट्राई करना है कि नॉन रीयूजेबल थिंग्स यूज करने हैं, मतलब डिस्पोजेबल थिंग यूज करने हैं। और हम लोग लैरिंगोस्कोप ब्लेड पे जो शीट पड़ी होती है उसको हमेशा डिस्कार्ड कर देना है, नए पेशेंट के लिए नया यूज करना है। ऑलवेज ट्राई टू यूज एवरीथिंग विच इज डिस्पोजेबल इन दैट कोविड पॉजिटिव पेशेंट फॉर द सर्जरी, ठीक है। And you should always throw the things that you are not going to use again, and if there is certain things like monitors and everything which you are going to use again, then put them in 2 to 3% of the hypochlorite solution of the Cydex, and you can disinfect the equipment as good as for the 45 minutes। Cydex में कम से कम 45 मिनट तक होना चाहिए डिसइंफेक्शन उसका, बिफोर यूजिंग फॉर द नेक्स्ट पेशेंट, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट केस। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको अगला मरीज तुरंत लेना है, जैसे बहुत सारे, सपोज यू मे हैव कोविड पॉजिटिव, बस मैंने एक दो मिनट क्लास ही चल रहा है। ओह माय गॉड। तो सपोज यू मे हैव कोविड सर्जिकल पेशेंट्स बैक टू बैक, देन इन केस देन यू शुड हैव टू टेक ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 1 आवर इन बिटवीन। तो जो 1 घंटे का जो ब्रेक आप लोगे ना दो केसेस के बीच में, उसमें क्या करेंगे आप, जो क्लीनिंग ऑफ द ओटी होगी, डिसइंफेक्शन ऑफ द ओटी होगा, और जो अगले मरीज के लिए नया स्टाफ आएगा तो उसकी डॉनिंग का जो टाइम है वो भी आपका उसके अंदर सारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो इसलिए आपको कम से कम 1 घंटे का ब्रेक 2 केस के बीच में लेना चाहिए, उसके बाद आपको नया पेशेंट बुलाना चाहिए, ठीक है।
And this is how you can manage the challenges in the anesthesia as an anesthesia person in the COVID-19 pandemic. And ultimately, the basic challenge for the anesthetist is the same as it has always been. Anesthesia itself is a challenging thing. So, और हो सकता है कि this crisis will provide the necessary for the more viable solution. इससे हमारा जो ब्रांच और इम्प्रूव कर जाए हो सकता है. अब एनेस्थीसिया के बारे में लोग कोविड के बारे में के बाद ज्यादा जानने लगे ना. बहुत से लोगों ने एनेस्थीसिया वालों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी. कोर ग्रुप में उनका ज्यादा हो गया है ना. तो let us hope that this will be the legacy of the COVID-19 within the specialty of anesthesia. Thank you.